जब इन्होंने ढक्कन खोला तो इनको पता चला कि ये है, एंड दे बर्स्ट ऑल दी, जितने मैगजीन में 8 गोलियां होती है 8 के 8 सारे चेस्ट में डाल दिए। तो उसी वक्त सारा खत्म हो गया। रघुनाथ मंदिर हाई स्कूल करनगर का, उसको मेरे सामने जला दिया गया। मेरे सामने कशपा गर्ल्स स्कूल, उसको भी जला दिया मेरे आंखों के सामने। आई वाज ओनली 500 yards away from that। मैं जानना चाहूंगा कि बीके गंजू जी शहीद हुए, लेकिन आप पर निशाना क्यों था? हमारी फैमिली सारी निशाने पर थी। बात यह है कि जब ये चीजें हैं, इट इज नोन टू द गवर्नमेंट, इट इज नोन टू द पब्लिक, तो भी फिर इग्नोर हो रहा है ये। वी आर वीपिंग फॉर एवरीबॉडी। प्राणा चत्ता, जो उसका क्या हाल हुआ, टेकलाल टेपलो, प्रेमनाथ भट्ट, जस्टिस गंजू, पंडित लास्कोल जी। In the annals of history, certain stories echo louder than others. They echo not because they are grand tales of victory, but because they are poignant reminders of loss, courage, and an undying quest for justice. One such story is that of Shri Bal Krishna Ganjuji, a beacon of resilience in the face of adversity whose martyrdom remains etched in the collective memory of the Kashmiri Pandit community. Bal Krishna Ganjuji, an engineer serving diligently in Mahanagar Telephone Nigam Limited in Srinagar, was a man of remarkable integrity and dedication. Known for his gentleness and decency, he found himself caught in the midst of increasing turmoil in Kashmir. Despite the looming threats and danger, he remained steadfast in his commitment to duty. On a fateful day, March 19, 1990, as Balkrishna Ganjuji prepared for work, he fell victim to a heinous attack in his own home. The sense of safety was shattered, a family was left bereft, and an entire community was plunged into grief. In the aftermath of the tragedy, promises of justice were made, assurances were extended, yet the reality was starkly different. The family of Balkrishna Ganjuji faced a void, a lack of closure. The authorities' failure to uphold accountability and to address the glaring injustice deepened the wounds inflicted upon the community. The struggle for justice became a collective endeavor. The family, despite being uprooted and forced to relocate multiple times, held on to the hope that their voices would be heard, their grievances would be addressed. Their resilience in the face of adversity is a testament to the indomitable spirit of the Kashmiri Pandit community. The story of Shri Balkrishna Ganjuji and the Kashmiri Pandit community is not just about a tragic incident. It's about a community's struggle for survival, recognition, and justice. It's about the resilience of those who refuse to be silenced, who refuse to be forgotten. Their quest for truth and justice continues, an enduring testament to their spirit. It is a story that needs to be heard, to be understood, to be remembered. It urges us to learn more about the Kashmiri Pandit community, to recognize their struggle, and to join them in their pursuit of justice. Because the echoes of their struggle are not just echoes of the past, but resonating calls for justice in the present and the future. देश है अखंड, देखते रहिए मारतंड। नमस्कार, मारतंड टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीरी पंडित समाज त्रासदी से गुजर चुका है और आज भी उसकी त्रासदी का कोई अंत नहीं है। वह त्रासदी जो आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रही है, वो न्याय जो अभी तक नहीं मिल रहा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, न्याय मिल नहीं पा रहा। मृत्यु जो है वो जीवन का सत्य है, लेकिन मृत्यु अगर समय से पहले आए तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप जेनोसाइड का नाम दे सकते हैं? जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं शहीद श्री बालकृष्ण गंजू जी की, जो शहीद हुए और उन्होंने शहादत दी कश्मीरी पंडित समाज के लिए, और आज भी वो त्रासदी कश्मीरी पंडित समाज के जहन में गूंज रही है। लेकिन त्रासदी के होने के बावजूद भी समस्या ये है कि अभी तक भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। दर दर ठोकरें खाने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर कोई स्मारक बनाया जाए तो क्या वो न्याय है? जी नहीं मित्रों, न्याय देना अभी बाकी है। आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ उनके बड़े भाई साहब हैं शिवन किशन गंजू जी, जिनसे हम बात करेंगे और विस्तार में जानेंगे कि आखिर वो त्रासदी क्या थी और किन कारणों से ये त्रासदी हमें झेलनी पड़ी, और क्या क्या कारण रहे कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय का जो एक विभाजन हुआ,
अपने ही कश्मीर को लेकर और वो पलायन के रास्ते पे चल पड़े और अभी भी पलायन का जो है वो दर्द झेल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि 19 मार्च 1990 का जो दिन था वो हम सब के लिए अभी भी एक दर्द भरा दिन है और कहीं ना कहीं जब हम उस दिन को याद करते हैं तो एक पीड़ा हमारे सामने आती है। आप इस संदर्भ में अपना क्या मत रखना चाहेंगे? पहले मैं सब दर्शकों को नमस्ते करना चाहता हूं और आपको मार्तन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मार्तन टीवी को, ताकि वो लोगों की आवाज कम से कम पहुंचाते हैं लोगों तक। त्रासदी तो थी, 5.5 लाख मेरे हिसाब से 5.5 लाख से 6 लाख कश्मीरी पंडित थे, उनके लिए त्रासदी का टाइम ही था। लेकिन लगता था कि ये आज का नहीं है, ये पहले से बना हुआ सारा प्रोग्राम था। मैं तो पीछे भी जा सकता हूँ। पहले मैं अपने इस दर्द का उस 19 मार्च 1990 की बात बताना चाहता हूँ। बालकृष्ण गंजू जो एक इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, वो एमटीएनएल में काम करते थे। एमटीएनएल का एक और ऑफिस था इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, वो बरदला में था, बागात बरदला में। उधर वो ड्यूटी पर थे क्योंकि ही वाज स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनको वो इंचार्ज बना दिया गया। ही वाज सो जेंटल, इतना शरीफ था, इतने उसकी उसमें सद्बुद्धि थी कि वो किसी को न किसी को मतलब दुश्मन बनाता था, न किसी की दुश्मनी के लिए वो तैयार रहता था। हर एक के साथ भाईचारे के साथ रहता था। लेकिन जब वो एमटीएनएल में वहां पर था 19 मार्च तक, तो उसने देखा सारे एमटीएनएल के जितने भी एम्प्लॉइज थे एक एक करके वो चले गए वहां से। कभी कोई ग्रुप में चले गए, कभी ऐसे एक एक करके चले गए। इसको भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम भी निकलो, लेकिन ही हैड अ कमिटमेंट। उसने मुझे, मैंने भी उसको बहुत बार गया। मैं फरवरी में गया था उसको लाने के लिए, फरवरी 90 में शिवरात्रि के दिन 21-22 को मैं वहां पहुंचा। 21-22 मतलब 21 की रात को मैं शाम को पहुंचा, जिस दिन मैंने अपने आंखों से देखा रघुनाथ मंदिर हाई स्कूल करनगर का, उसको मेरे सामने जला दिया गया। मेरे सामने कशपा गर्ल्स स्कूल, उसको भी जला दिया मेरे आंखों के सामने। आई वाज ओनली 500 यार्ड्स अवे फ्रॉम दैट। लेकिन कहने की बात है, जब मैं घर पहुंचा तो इसी भाई ने मुझे उस दिन कहा, आप आए क्यों? मैंने कहा, मैं आपके साथ शिवरात्रि मनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको लेना भी चाहता हूँ अपने साथ। लेकिन उसने पहले तो माना, बाद में मुझे उसने मतलब ही टोल्ड द रियल ट्रूथ। मैंने कहा, आप बताओ क्या कमजोरी है आपकी? कहने, आई हैड अ कमिटमेंट विद गवर्नर श्री जगमोहन, अब तो लेट है, तो उनसे मैंने कमिटमेंट दी है कि अब उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि आपको भी जाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, आई विल स्टे विद यू, अगर आप चाहते हो आई विल स्टे बैक। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जरूरत है, क्योंकि एक ही लिंक था, देयर वाज ओनली लिंक फ्रॉम बराजुला एक्सचेंज टू सेंटर और सेंटर टू गवर्नर, यही एक लिंक था। लेकिन इस पर तो विश्वास रहा, तो इन्होंने कोड बनाया, एक कोड रखा था दिल्ली, जो इनका मेन ऑफिस था, हेड ऑफिस, जनरल मैनेजर जहां बैठते थे, प्लस ये और प्लस गवर्नर, इनका एक उसी कोड से ये काम करते थे। और जब ऑन होता था तो तब वो बात करते थे सेंटर के साथ। वही इनके जो पता लगा कि ये तो वहां से तो कोई टाइपिंग नहीं हो सकती है, ये बैठा है, ही वॉज द मेन पर्सन देयर। तो उन्होंने एक स्कीम सी बनाई कि इसको करना है, खत्म कर। ऐसा लगा मुझे, जो मुझे कुछ एम्प्लॉय से उनके जो उनके अंडर काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि ही वॉज ए ग्रेट रिस्क। इसको एक दो बार धमकी भी आई थी कि भैया तुम ये छोड़ो। लेकिन क्या हुआ, 19 मार्च को, 19 मार्च सवेरे, ये जब व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिस, तो उस वक्त 8 बजे थे, 8 सवा 8, अपने कमरे में, हमारा मकान जो था दैट वाज 4 स्टोरी बिल्डिंग, उधर कपड़े बदल रहा था, तो इसको बाहर से लगा कि कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, हलचल हो रही है। ही ट्राई टू गिव रिंग, मतलब इसको 7:30 से ही तैयारी कर रहे थे, कुदरती शेव कुछ करना होता है,
तो उसको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने इन्फॉर्म कि इस तरह से हो रहा है, आई मे बी मतलब किल्ड। इतना हुआ कि किसी ने उसको इग्नोर ही किया। एक दिन पहले भी उसने डीजीएम को कहा था कि मुझे लगता है मैं आई हैव गेटिंग थ्रेट कॉल यहाँ, तो उसने उसको कहा कि तुम ये तो थ्रेट सबको आते हैं, मैं भी थ्रेट में हूँ। तो इन्होंने क्या किया, सब जब 8 सवा 8 बजे ये कपड़े बदल रहा था तो 6 आदमी जो मैंने सुना है, आई वॉज नॉट देयर, मैं तो उधमपुर में ड्यूटी था, मैं आया था सिर्फ 21-22 फरवरी को। तो मैं उस वक्त जब इसका ये हुआ, उस वक्त मैं जम्मू में था, तो मैंने सुना वहां पर चौक में कि इस तरह से बीके गुंजू की डेथ हुई, बीके गुंजू को मारा गया। वो टेलीकॉम पहले इसका डाउट हुआ, फिर कहा नहीं उसकी डेथ हो गई है, उसको किलर्स आए थे ऐसा। फिर मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी करके ऐसा लगा कि उनको 6 आदमी आए थे, जो मैंने सुना एज पर वर्शन ऑफ पीपल देयर। 6 आदमी आए, 2 अंदर घुसे, उन्होंने ट्रस पासिंग की थी, खिड़की तोड़ी थी, तो अंदर गए थे। 2 बाहर थे और 2 इसको नीचे, जो इसकी मिसेस थी और इसका एक छोटी लड़की थी, वो भी 2-2.5 साल की थी, वो नीचे थी मदर के साथ। यही 3 लोग रहते थे। तो ये ऊपर गए, देखा, दे सर्च आउट, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, सारे कमरों को इन्होंने सर्च किया, कहीं नहीं मिला। दूसरी बार फिर ये जब वो आ गए 2 आदमी वापस, तो उनको दे वर इंस्ट्रक्टेड दैट ही इज इन द ड्रम, राइस ड्रम। तो वो एम्प्टी थे हमारे पास 2-3 ड्रम थे, एक तो बिल्कुल एम्प्टी था, ये इसी में घुस गया था ऊपर। तो ये दोबारा गए, जब इन्होंने ढक्कन खोला तो इनको पता चला कि ये है, एंड दे बर्स्ट ऑल दी, जितने मैगजीन में 8 गोलियां होती है, 8 के 8 सारे चेस्ट में डाल दिए। तो उसी वक्त सारा खत्म हो गया। जब वो नीचे गए, आवाज आ गई, आवाज आ गई नीचे। जो बेटी थी इसकी, वो फेंट हो गई, 2.5 साल की बेटी। लेकिन जो इसकी बीवी थी, जब वो ऊपर से आ गए तो उन्होंने उनको कहा था कि तब उनको कहा कि तुम मुझे भी खत्म करो, अब क्या करना, अब तो है ही नहीं हमारे लिए कुछ। उन्होंने कहा नहीं, रोने के लिए तो कोई होना चाहिए। ये 19 की घटना है। जब वो फिर उसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस ने इनको इंस्पेक्शन क्वार्टर में लेके, उनके देवर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट whosoever comes in their relation must be killed. सो उनको बचाने के लिए उन्होंने इंस्पेक्शन क्वार्टर लिया, पीएनटी इंस्पेक्शन, वो सोनवार में था, तो उधर ले गए। उधर मैं तो दूसरे दिन पहुंचा, उस दिन तो पूरा बर्फ था। आई ट्राई टू कैच टैक्सी, तो मैं तो उधमपुर पहुंचा, उधमपुर से मिसेस को उठाकर और भाइयों को उठाकर मैं गया श्रीनगर। लेकिन उस दिन तो पूरा रास्ता बंद था, बर्फ था, सारा कुछ। एनीवे वी रीच्ड, वहां पर जब हम पहुंच गए, दूसरे दिन पहुंचे, अगले दिन शाम को, वो भी रात को 11 बजे हम पहुंचे। तो तब तक तो सारा वो क्योंकि ऐसा था कि I2 was in under threat. थ्रेट क्या था? I2 was in their नेमिंग लिस्ट। सारी फैमिली, हमारी फैमिली का पूरा लिस्ट गया था, जो मुझे बाद में पता चला। तो मेरा तो था ही, लेकिन क्या हुआ उस दिन, तो इन्होंने कुछ लोगों ने उधमपुर से बताया कि शुभन गुंजू तो अंडर थ्रेट है, इसको किसी तरीके से टैक्सी इसकी जानी नहीं चाहे। लेकिन मुझे नहीं पता था, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस और वेदर कंडीशंस, आई हैड टू टेक अनदर। मैंने दूसरी, हम लोग वो उसको टैक्सी को छोड़कर जो उधर वाली थी, हम चल पड़े, 2 किलोमीटर कम से कम चले, तो उधर से मैंने दूसरी टैक्सी ली और उनको भी पैसे दिए, इधर भी दिए, पहुंचा मैं बड़ी मुश्किल से 11 बजे। क्योंकि मेन था कि ही वाज हेल्पिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ही वाज हेल्पिंग द गवर्नमेंट। वो अगर, लेकिन अफसोस ये है, उस वक्त जो ये था, मतलब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, वो था लंदन में, जो मैंने सुना वो लंदन में था। उसने
कहा था, उसने उधर कहा था कि ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है कि गंजू गया एज ए गुड दिस ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर, ये तो इनको मारा, दिस इज वेरी ग्रेट लॉस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। फिर गंजू उन्होंने साहब उस हम वक्त आगे कहा था, बढ़ेंगे, गंजू साहब हम आगे बढ़ेंगे इस बात को लेकर, आगे आप अपनी चर्चा जारी रखेंगे, पर मेरा एक यहाँ पर एक आपसे एक प्रश्न होगा जो मैं पूछना चाहूंगा हाँ कि सर, इतना इतना सब कुछ हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी कश्मीरी पंडित समाज के साथ हुई, आपके परिवार के साथ हुई, आपका अपना परिवार का सदस्य जो है वो चिर निंद्रा को वो प्राप्त हुए, और उन्होंने बलिदान दिया दिया कश्मीरी पंडित समाज के लिए, उन्होंने बलिदान दिया उन सब उन सब जीव आत्माओं के लिए जो कहीं ना कहीं जो पक्षधर रहे हैं, मानवता के प्रति जो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपके विचार यहाँ पर क्या हैं? एक व्यक्ति जो कश्मीरी पंडित समाज में पैदा हुआ, अपना नाम कमाया, एक परिश्रम किया और इस ओहदे तक पहुंचे कि उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वाह किया, ये सोचने के बगैर कि मेरी जान को कोई खतरा हो सकता है, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरे 2.5 साल की बच्ची है, मेरा भाई है, मेरे उसकी बच्ची है, इतना बड़ा परिवार है, उसने किसी की चिंता नहीं की, वो देश के प्रति समर्पित हुए और देश के प्रति समर्पित होने के बाद वो उन्होंने गोली अपने सीने पे खाई और इस संसार को त्याग दिया। अपने आत्मा, अपने शरीर से अपनी आत्मा का जो एक प्रवाह है वो उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। कि क्या आपको लगता है कि समूह की एक अलग मांग थी, अगर वह मांग ना हो तो शायद आज श्री अर्थात शहीद बीके गंजू हमारे साथ होते? ये तो आप पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया। मैं इसको पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ कि आई एम बॉर्न 47 अक्टूबर 47, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली हैं खुद इन माई लाइफ सिंस देन, मैंने जो देखा या मैंने पेरेंट्स से सुना, तो दैट आई कैन रिवील हियर, जिससे ये सारा कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल लगता है। जो सवाल था ये तो ऐसा है, ये त्रासदी इस तरह से नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है। इट हैज बीन स्टार्टेड राइट फ्रॉम 1931। आप बता रहे थे कि जब आप जम्मू वहां पहुंचे, जब आपने अपने जो आपके जो भाई है, छोटे भाई, जब उनकी आपने मृत्यु का समाचार सुना तो आप फिर श्रीनगर की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में आपने गाड़ियां भी बदली, टैक्सी बदली, और फिर जब अंत में जब आप श्रीनगर पहुंचे तो उसके बाद किस तरह का माहौल आपने देखा और किस तरह का वातावरण देखा? इंस्पेक्शन मुझे पता लगा कि ये वो इंस्पेक्शन क्वार्टर में ले गए हैं PNT MTNL के, तो हम वहीं पहुंचे। ऐसा हुआ था कि आई वाज अंडर थ्रेट, उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी लगी थी, मैं चाहता था कि मैं इनकी जो ये फूल हैं मैं खुद लाऊं। मैं गया था, मैंने सोचा था मैं लाऊं फूल और अब तो जाएंगे, लेकिन मुझे उन्होंने इंस्पेक्शन क्वार्टर से बाहर निकलने, उन्होंने टोटली कहा कि यू कैन नॉट गो आउट ऑफ इंस्पेक्शन क्वार्टर, जब तक आप यहाँ से सिरापत जम्मू जा सकते हो और कहीं नहीं, या तो दिल्ली जाओ या तो जम्मू जाओ। गंजू जी मुझे ये बताइए कि गंजू जी मुझे ये बताइए कि बीके गंजू साहब जो है वो शहीद हुए 19 तारीख को, और फिर जो उनका संस्कार किया गया, क्या वो उसी तिथि को किया गया या उसके बाद किया गया? उसका जो वो ले गए थे पहले वहां पर मॉर्चरी में, फिर ले गए थे उसको ये पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए थे। पोस्टमार्टम से हमारे पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ले गए हैं वहां पर इंस्पेक्शन क्वार्टर से फिर वो वहां ले गए, ऐसा जो मैंने सुना, क्योंकि भाभी को मैंने कभी पूछा ही नहीं। आई हैड नो करेज टू आस्क माय भाभी कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसी हालत। तो दैट मीन्स जिस टाइम उनका संस्कार, अंतिम संस्कार हुआ वहां पर, वो तारीख जो थी वो 19 तारीख नहीं थी, भी उस समय 20 का था। मैं तो शाम को 20 मार्च को मैं इंस्पेक्शन क्वार्टर में, जो इनका इंस्पेक्शन क्वार्टर है MTNL का, शाम को पहुंचे, मैं उधर पहुंचा 11:15 बजे, 11:15 उस वक्त की बात। हाँ, रात के 11:15 रात के, और तब तक संस्कार हो चुका था। उस वक्त मैंने देखा नीचे, जब मैं ऊपर गया नीचे देखा वहां पर खून था और उसके कपड़े थे,
लखपत का इसका मतलब मैं खुद ही अंदाजा लगा रहा हूं कि उसको मतलब यहाँ लाया गया है आफ्टर पोस्टमार्टम, उसके बाद इसको मतलब उधर क्रिमेशन के लिए ले गए। ओके। तो ऐसा तो मुझे गंजू जी, मुझे इसका हाँ पूरा, जी जी गंजू जी, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, ये तो बहुत बड़ा क्योंकि मैं एक आई हैड अन्याय मैं हुआ, अन्याय हुआ आपके साथ, आपके परिवार के साथ, और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में आप पहुंचना चाह रहे थे, आप पहुंच नहीं पाए, और फिर आप पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप घर से बाहर ना जाएं। मैं जानना चाहूंगा कि बीके गंजू जी शहीद हुए, लेकिन आप पर निशाना क्यों था? वो तो एक पैट्रियोटिक थे, उन्होंने अपने काम का निर्वाह किया, अपने कार्य का निर्वाह किया। हर सभी अपना कार्य का निर्वाह करते हैं। हम नौकरियां करते हैं तो हमें अपने एक प्रिंसिपल्स याद रहते हैं, हमें अपने नियम अनुसार काम करना होता है, वही काम वो भी कर रहे थे। लेकिन उसके बदले में उन्हें ये मौत दी गई, ये तो दुखद है, ये तो सारा संसार इस त्रासदी को नहीं भूलेगा, और विशेषकर शहीद बीके गंजू जी के समर्पण को हम हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आप निशाना क्यों बने? मैं निशाना नहीं बना, नहीं, ये तो हमारी फैमिली सारी निशाने पर थी। जो मैंने सुना कि इन्होंने पूरा पोस्टर लगाया था जिसमें सबों के, हमारी फैमिली का पूरे का नाम लिखा था, इवन माय फादर, माय मदर, मेरे। लेकिन उस वक्त पॉसिबल यही थी, हमारा थोड़ा सा ठीक था उस वक्त कि फादर मदर देवर इन बॉम्बे, उनको उसी दिन आना था, 19 तारीख को ही उनको जम्मू पहुंचना था। इट वॉज वाई आई हैड गॉन टू जम्मू, कि उनको रिसीव करने के लिए। ये तो पता ही नहीं था कि ये होगा। वो भी उसी दिन पहुंचे और उनको फिर सीधा ले गए उधमपुर, आई वाज वर्किंग। मैं उस वक्त बैंक में, मैं मतलब आई वाज वर्किंग इन बैंक। मेरी ट्रांसफर थी उधमपुर में, मेरी फैमिली थी वहीं, और हमारी नानी थी वहां पर, इसलिए सारे पेरेंट्स, भला हमारे 2 पेरेंट, उनको भी लाया गया वहीं। सो हमारी फैमिली सारी स्कैटर्ड थी, विच दे वर नॉट नोइंग पॉसिबली। उन्होंने, लेकिन हमने सुना कि पुलिस सोर्सेस से कि वहां पर उन्होंने पूरा लिस्ट बनाया था हमारी फैमिली का। अभी अगर मुझे अलाउ करोगे आप, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए, प्लीज आप बताइए। बात यह है कि उस वक्त जो टेलीकॉम मिनिस्टर था, उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम बालजी गंजू को ऑनर देंगे, मतलब कंट्रीज ऑनर देंगे। अब देखो, 1919 ना, 1990 नब्बे और नब्बे 1923, 1990 2024। और 33 साल हो गए, आज तक अभी कुछ ऑनर नहीं दिया उसको। When we had requested them, हमने कहा भी, हमने मतलब भेजा भी, लेकिन अभी तक वो ऑनर हमें पता नहीं कौन सा ऑनर दिया उन्होंने, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उस वक्त। इवन जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमें वो भी नहीं पता। बात ये है कि अगर ये आदमी, मैं इसको वैसे मैं ये कहूंगा कि मेरा सिर्फ भाई है, बीके गुंजू मेरा भाई था, बट ही वर्कड फॉर द कंट्री, ही हेल्प्ड द मतलब कंट्री टू सर्वाइव। उन्होंने मेंटेन किया जितना भी हो सका उनसे, जब तक वो मतलब ऊपर वाले मतलब सर की गति पर नहीं गए, तब तक उन्होंने कंट्री को पूरा। लेकिन ये बीइंग ए सिविलियन पर्सन, इसको नहीं दिया। व्हेन गवर्नर इन हिज बुक, जो लेट जगमोहन जी, जो उन्होंने किताब लिखी है, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया, और उन्होंने ही यहाँ पर जो बीके गुंजू पार्क है, उन्होंने ये रिकमेंड की है, ये गुंजू के नाम के एमटीएनएल पार्क जो है, ये बीके गुंजू नाम के नाम से जानी जाएगी अब। और उन्होंने उसका जो वहां पर वो नींव डाली थी, वो जगमोहन और मैं था वहां से उस दिन। उन्होंने मुझे कहा पहले आप करो, क्योंकि बड़े भाई हो। मैं भी था प्रेजेंट, और वो भी थे प्रेजेंट। और उसके बाद हमने 2 साल पहले 1.5 साल पहले बस लगाया वहां पर, वहीं पर जो उनका पार्क बना हुआ है, जी जी जी, वहां वहां पर पर, हाँ। हमने बस लगाया, जिसके लिए ये माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने ही उनको लगा। उस दिन अग्निहोत्री जी भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने बस लगाया, उनके सामने लगाया, बस अनवेल किया, बस लगाया था, अनवेल किया। बात यह है कि जब ये चीजें हैं, इट इज नोन टू द गवर्नमेंट, इट इज नोन टू द पब्लिक,
तो भी फिर इग्नोर हो रहा है। ये जो मुझे अभी तक दुख सा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, हमारी फैमिली को दुख हो रहा है कि अगर उन्होंने कहा था। लेकिन इसके एडिशन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे भाई का हो गया। वी आर वीपिंग फॉर एवरीबॉडी। मैं आपको क्या बताऊं, प्राणा चत्ता, शी वाज जस्ट लाइक माय मतलब यंगर सिस्टर। उसे पढ़ा है, हमारे साथ पढ़ती थी, बैठती थी, वो खेलती थी। उस बेचारी का क्या हाल हुआ बारामूला में, उसके हस्बैंड का क्या हाल हुआ इसी तरह से वो जो अपनी बहन थी नर्स, जो उसका क्या हाल हुआ। बहुत सारे टेकलाल टेपलो, प्रेमनाथ भट्ट, जस्टिस गंजू, ऐसे जो यहाँ पर थे, मतलब ये क्या लसकोल, पंडित लसकोल जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग, अब मुझे याद नहीं, नाम आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग बेचारे गए। ये नहीं कि यही है, बच्चे भी, बच्चे जवान, क्या बूढ़े, ऐसे ये क्या देखिए छठी सिंह पुरा में जो हुआ वो भी बहुत बड़ी त्रासदी थी। नाडी मार्ग में जो हुआ वो भी बहुत बड़ी हाँ, त्रासदी थी वो भी कश्मीरी त्रासदी थी, समुदाय मतलब की। बच्चों को ये कैसे सही किया, कहना है। मतलब लेकिन ये क्या। एंड इट गुंजू जी इज, आप ये मैं आपको कहूंगा ये एक दिन की बात है, 10 दिन। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास इस इंटरव्यू के अलावा जब हमने इससे अपने कम्युनिटी से बात की तो वहाँ पर भी कईयों ने अपने संदेश हमें भेजे, और जो संदेश हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। हमने कहीं ऐसे जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स से बात की, तो उन्होंने भी हमें कुछ इस दर्द के बारे में अवगत कराया, जो भारत देश से ही नहीं, जो कि कश्मीरी बाहर भी रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, उनकी तरफ से भी, और अरब कंट्रीज़ में भी, वहाँ पर से भी हमारे पास संदेश आए हैं। वो एक थारो जेंटलमैन थे। श्री अरुण शौर्य जी ने ये कहा था कि श्री बालकृष्ण गंजू का बलिदान जो है ये अदम्य साहस का एक परिचायक है, और हम इनको एक नेशनल अवार्ड देंगे। आज की डेट तक वो भी नहीं हो पाया। श्री बालकृष्ण गंजू को उनके अदम्य साहस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अवार्ड देना चाहिए। मुझे अपनी पर्सनली ये लग रहा है कि उनको जिस तरह से जितना उनको मिलना चाहिए था सम्मान या उनका जो हक था, ये जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे कि गवर्नमेंट को भी कभी करना चाहिए था कि उनके बारे में कुछ जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं या कुछ अवार्ड मिलते हैं, ऐसे ऐसे उनको भी मिलना चाहिए ताकि वो भी एक अमर शहीदों की एक लिस्ट में उनका भी नाम आ जाता। हमारी कम्युनिटी के साथ जो जैसा उस टाइम अनफॉर्चुनेट ये चीज़ हुई, जो कि इतिहास के पन्नों में ऐसा काला दिन है 1990, और उसमें जिन जिन लोगों की निर्मम हत्याएं हुई थी और उनको अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला। कि गंजू साहब जो हमने सुना है, अभी छोटे ही थे तब, तो 1990 में मतलब जैसे बी के गंजू जी तो वो टेलीकॉम में थे, उनके मैंने तो ये भी सुना कि उनके काफ़ी सुनते रहते, मैं भी बड़ा मतलब इन्वॉल्व हुई चीज़ दो, मैं हर चीज़ रीड करता रहता हूँ। उनकी फैमिली भी सुना है कि उनके काफ़ी बार मतलब उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए कि उनको जस्टिस मिले, तो उनको भी जस्टिस नहीं मिला, जबकि जस्टिस मिलना चाहिए था। ये तो मतलब ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हमारे कम्युनिटी के साथ जो हुआ उस टाइम उसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा, जब सारा चीज़ें हो सरकार कर रही है, सबके लिए कर रही है, तो हमारे कम्युनिटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अभी तक जो टारगेटेड किलिंग्स हुई है, चाहे वो शहीद बी के गंजू की हो या बाकी कश्मीरी पंडित मार्टिर्स की हो या जो हो रही है, ये सरासर गलत है। इट इज़ टोटली अनएथिकल। दूसरा, जो हमारे बड़े भाई शुभनजी गंजू की मांग है टू गेट जस्टिस इन फॉर्म ऑफ ऑनर फ्रॉम गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ मार्टिर बी के गंजू, वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वो केवल उनके नहीं पूरे कश्मीरी समुदाय के, पंडित समुदाय के भाई थे। और इनफैक्ट उस समय पूरा विश्व एकदम सन्नाटा था, ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मेरी भी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि
उनको ये जस्टिस मिलनी चाहिए और बाकी मार्टियर्स को भी, उनको भी, क्योंकि न्याय पाना एक बेसिक राइट है हर एक व्यक्ति का। While paying rich and profound tributes to Comrade B.K. Ganju, our dedicated and committed comrade of the telecom sector, I want to emphatically state that he laid down his life to preserve national sovereignty and security. Telecom. So, he should be given a national award. He deserves it, he richly deserves it. There is absolutely no doubt about it. Very richly deserves he this national award, which has not been bestowed on him. The government should consider very seriously conferring of posthumously as national award, and that would only be a befitting tribute to the glorious sacrifice made by Comrade Ganju. There should be fact-finding committee to find out when 5 lakhs Pandits were thrown out of the Kashmir, what is the reason? At least we deserve to know what is the reason, who are behind for this, and also about the brutal killings which happened during 1990 onwards. It's not known how many actual figure is there. Government is giving some other figure, whereas the community is stressing there are more than 2,000 killings which happened at those times. At least we deserve a high level committee, a fact find true कमेटी। तो गंजू जी, आपकी अभी आपकी क्या मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो और आपको न्याय मिले? एक तो आपने ये कहा कि भारत सरकार की तरफ से जो बात 1990 में उनके शहीद होने के बाद जो रखी गई थी आपके सामने कि उनको एक ऑनर मिलेगा भारत सरकार की ओर से, वो अभी तक नहीं मिला है। एक तो ये रहा। दूसरा, या अभी तक भी वो न्याय प्रक्रिया चल रही है? मैं इतना बता सकता हूं कि मुझे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन बात ये मेरे ख्याल से ये मेरी सिर्फ बात नहीं है, ये एंटायर जो जितने भी 5.5 लाख या 6 लाख कश्मीरी पंडित थे उन सबों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके एक फैमिली के 5-5 लोगों को मारा। क्या है पता ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है मतलब पता ही नहीं चल रहा। मैं ये सोच रहा था कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए बीके गंजू, अब तो ये पब्लिक में है, उन्होंने ही बस अनवेल किया, लेकिन दे शुड हैव इन्फॉर्म कि इसका जो ये आदमी है तो उसको हमने पकड़ लिया, हमें पता ही नहीं। और हमें भी क्या अभी न्याय प्रक्रिया में कोई केस चल रहा है? क्या न्यायपालिका में अभी आप केस लड़ रहे हैं? कोई नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। न्यायपालिका ने माना ही नहीं, इग्नोर्ड कश्मीरी पंडित्स। गंजू जी, जब अब सरकारें बदल चुकी हैं, अब यहाँ पर दूसरी सरकार आई है, तो क्या आपका अभी भी उनके साथ संपर्क में है, जो कि न्याय जो आपको मिलना चाहिए था, एक ऑनर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट सरकार जो अभी वर्तमान सरकार भारत सरकार है, क्या आपकी बात उनसे हुई है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और उस पे कुछ कार्रवाई हो उनकी तरफ से? और क्या अगर कुछ बोला गया है तो किस तरह का बोला गया है? नहीं, अभी तो ना उनके तरफ से कोई वर्ड आया ना मैंने ही कुछ किया, क्योंकि मैं सोचता था इंडिविजुअली मैं जाना नहीं चाहता हूं कि मैं अपने लिए जाऊं। टू बी फ्रैंक एनफ, मैं चाहता हूं कि जितने भी सारे कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए तो मैं चाहता हूं कि ये इंडिविजुअल ना बने, मेरा केस इंडिविजुअल ना बने। हमने कभी इतने 30-34 साल में मैंने ये इंडिविजुअल नहीं बनाया। मैंने सोचा ये कलेक्टिव, वी मस्ट हैव कलेक्टिव थिंकिंग, जिसके लिए मैंने ये तो यहाँ पर तो ये है मेरा केस। मैं इवन कश्मीर जो सुधार यहाँ पर कश्मीर समिति थी, मतलब इधर लाजपत नगर में दिल्ली में, उनको मैंने बहुत पहले कहा था ये मुझे लगता है यहाँ पर हमें कुछ न्याय नहीं मिलेगा, लेट अस गो टू वर्ल्ड कोर्ट, बट दे डिड नॉट अलाउ इट। लेकिन वो पीछे लगे कोर्ट में, कोर्ट ने तो रिफ्यूज किया टोटली। तो एनीवे ये तो मैं ज्यादा इसमें वो नहीं जानना चाहता हूँ जिससे कुछ कंट्रोवर्सी,
लेकिन नहीं हमने नहीं, ये इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। ये आपका अपना मत है। एक भाई और भाई के लिए क्या सोचता है, और जो आपको कहा गया था आपने उसी पे विश्वास किया। जो कश्मीरी पंडित समुदाय में जो त्रासदी का खेल रचा गया हमारे साथ, और जो त्रासदी में हम जेले और कई सारी हमने कुर्बानियां दी। हम केवल श्री बीके गंजू की बात नहीं कर रहे, एक समस्त कश्मीरी पंडित में जो त्रासदी हुआ है हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपका एक निजी एक विचार था कि आपको ये कहा गया, ये आपको मिलना चाहिए था, और न्याय अभी तक आपको नहीं मिला है। बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे लिए। गंजू जी, मुझे आप ये बताइए कि जब ये सब कुछ हुआ और बीके गंजू जी का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद फिर आपका परिवार किस तरह से फिर से वापस पटरी पे आया? क्योंकि बहुत समय लगा होगा आपको एक सुचारू रूप से चलने में और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। बात है दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी एज इंडिविजुअल अपने लिए कुछ नहीं चाहा। एज इंडिविजुअल कि मैं तो बहुत सारे ओकेजन आए मुझे जब ऑफर भी दे गए थे, लेकिन इंडिविजुअल ये है कि अगर उस वक्त सिर्फ इतना सुना मैंने, मुझे ये पता है, मैंने ये सुना टीवी से कि जो ये टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर था उस वक्त उसने कहा वी विल गिव हिम स्टेट ऑनर। वो स्टेट ऑनर कहाँ गया वो तो समझ नहीं आया, बाकी क्या किया। अब उसके बाद आपने कहा आपकी फैमिली को क्या हुआ, कैसे हुआ। जब हम वापस उधमपुर आए, सारी फैमिली उधमपुर में थी। इट वाज अ स्मॉल रूम, एक कमरा और किचन था, फिर एक वरांडा था। फिर वो बेचारे सिंपैथी दिखाए उन मकान वालों ने, उन्होंने एक और कमरा छोड़ा। लेकिन फिर भी मतलब हम तो इतने बंदे थे, कम से कम 12-13 लोग। मेरी नानी भी थी, अब मेरी सिस्टर भी आए, बाकी लोग भी थे। तो फिर उसके साथ साथ फिर हम मेरा ट्रांसफर हो गया था उन दिनों। वो मैं भूल गया वो बताना आपको, एक इंक्वायरी चल रही थी इसकी मर्डर केस में, बीके गुंजू के मर्डर केस में। उसमें वो एसएसपी, ये जो सीआईडी के नहीं, आईबी के एसएसपी और एसपी आते थे हमें इंक्वायरी करने के लिए, बहुत बार आए। उन्होंने मुझे जम्मू इन्वेस्टिगेशन क्वार्टर में भी बुलाया, बहुत सारे विटनेस बुलाए, पूछा। तो उसके बाद वो आते रहे। एक दिन वो आए थे, मैं ऑफिस में था, बैंक से आया तो ये परेशान, वहां पर फादर जी पोजीशन में थे, माँ रो रही थी क्योंकि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया था बैक टू श्रीनगर। उधर ही मतलब बड़शाह चौक में निकला था, वहीं से वापस। तो ये रो रहे थे, मदर रो रही। मैं अंदर आ गया तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। इनको पता चला था इसको, क्योंकि मैंने उनको बताया था मुझे श्रीनगर जाना है। तो एसएसपी भी आ गए, वो आई एम थैंकफुल टू हिम। उन्होंने जब सुना, उनको बताया, पापा मम्मी को बताया, पूछा ये क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? उसी वक्त वो भी आए थे। तो वो कह रहे ये तो इसको तो जाना है श्रीनगर, ये तो कह रहा मैं 2-4 दिन में श्रीनगर, क्योंकि ड्यूटी थी, नौकरी थी। मैं क्या करता, दैट वाज द ओनली लाइवलीहुड फॉर वी पीपल। तो कहने लगे, एसपी को बहुत मुश्किल आ गया, गुस्सा आ गया, कह रहे आपको भेज रहे हैं, यूर फैमिली। उसने सीधा बताया, उसी से पता चला, इट इज हिज वर्ड्स। उसने मुझे कहा योर होल फैमिली इज ये लिस्टेड। नहीं, आप जा ही नहीं सकते, आपकी फैमिली अंडर थ्रेट है, कैसे जा सकते हो? ये था उस वक्त। फिर उसके बाद हमें तो दिल्ली आना था, मैं अक्टूबर में आया, लिया। वी स्टेड हियर, एक कमरे में हम कम से कम 7-8 लोग रहते थे, क्योंकि मिला ही नहीं दिल्ली में, उतनी पोजीशन भी नहीं थी कि आई कुड मैनेज अ बिग हाउस। इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कैसे हुआ, फिर दूसरे जगह चले गए। ये तो देखिए, ये तो दुखद बात है, और बस यही था कि आप जो आपकी एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर एसपी अगर उन्होंने इंक्वायरी की थी, पूरे मतलब सारा कुछ निकाला था, 2-3 महीने से चल रही थी इंक्वायरी, घरों में गए, घरों में आए, हमारे रिश्तेदारों को बुलाया, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसके बाद क्या हुआ वो तो पता ही नहीं चला। वेयर इज दैट इंक्वायरी? वो इंक्वायरी पता ही नहीं क्या हुआ उसका। जी, मैंने कहा इन 35 वर्षों में कभी आप उस घर में वापस गए जहां पर नहीं, नेवर, शहादत दी हमारे शहीद नहीं, बीके गंजू जी ने? हमारी ना हिम्मत हुई ना गए, नहीं, तब से नहीं, 34 साल में कभी नहीं गए।
We had never been to that house. आप अपने भाई को, छोटे भाई थे आपके, हाँ, आप उनको हर दिन याद करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई पल ऐसा हो जो उसके बिना आप बिताते हो, उनको याद करने के बिना। आपको इतना मैं ऐड करूं यहाँ पर, हम जो छोटे बाजार में हम रहते, जहाँ रहते थे छोटे बाजार में, हमारा एक कमरा था, स्टडिंग रूम, छोटा ही था। भाई सामने बैठता था, मैं भी, मतलब हम अड़ोस पड़ोस, मतलब ऐसे बैठे 2 कॉर्नर में। उसका एक ट्रंक था, मेरा दूसरा ट्रंक था, जिस पर हम काम करते थे। एक ही कमरे में उठना, हम भी एक ही कमरे में बैठना, एक ही माँ बाप के मतलब से खाना पीना, सब कुछ हमारा था। उसको इंजीनियरिंग के लिए, जब उसने 12 पास किया, उसको इंजीनियरिंग के लिए हमने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैंने उसको एनकरेज किया। मैंने कह रहे हम कैसे जाएंगे? मैंने कहा नहीं भैया, आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम आपका ठीक मार्किंग है, आप परसेंटेज अच्छी है, आप लेट अस गो। हमने फिर पैसे नहीं मांगे पेरेंट्स से। हमारी बुगली थी, उसमें कुछ 54-55 रुपए थे। हमने वो निकाल 51 रुपए इसके फीस थे, 1 रुपया वहां तक जाता था बस में। हम गए, फॉर्म लाया, इससे फॉर्म भरा, फिर एग्जाम दिया, एग्जाम में ये आ गया, फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद घर वालों को पता चला कि इसका इसको सिलेक्शन हो गया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो खुश हो गए, लेकिन हम पर बरस पड़े कि आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं। मैंने कहा यही तो हम इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि आप क्या सोचोगे। आप सोचोगे कि पैसा लगेगा, वो लगेगा, ये इतना था कि जो भी मैं उसको कहता या वो मुझे कहता, हम आपस में इतने जुड़े थे, कहने की बात नहीं। मैं क्या, इतनी हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है, क्या क्या बताएं। वो मुझे अगर मुझे नींद पड़ती थी, वो रात को मुझे जगाता था। उसको नींद पड़ती थी, कह रहा था मतलब मुझे जगाना, मैं उसको जगाता था। पढ़ते थे इकट्ठे दोनों। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, वो उसमें लगा था। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसमें वो आपकी आयु में कितना अंतर था आपकी और आपके छोटे भाई में? आई एम बॉर्न 47, अक्टूबर 47, और मेरा भाई नवंबर 50। ओके, तो 3 साल का अंतर, 2.5-3 साल का अंतर रहा और काफी अच्छा मिलाप रहा होगा आपका बचपन में। बहुत जबरदस्त, बहुत लाइफ हमारी इकट्ठे गुजरे। हम तो 4 जने थे, 2 भाई और 2 बहनें। हम इतना था कि हम एक ही थाली में, जब छोटे थे, हमारी मम्मी एक ही थाली में परोसी थी खाना, चारों खाते थे उसी से, एक ही थाली से। आजकल वो जमाना है नहीं। मैं अभी भी उनको कहता हूँ, अपनी बहनों को, अब तो बहनें हैं मेरे पास, मैं उनको अभी भी उनके बच्चों को कहता, हम इकट्ठे बैठते थे, मम्मी डालती थी खाना, उसी में हम खाते चारों। हमें ये नहीं था कि कौन क्या खाता है। ये है, ये था। अब इस चीज को कैसे आपको बुला गंजू सकता जी, है? कोई बुला कैसा नहीं सकता है, ये चीज को नहीं बुला सकता। ये और दर्द है, दर्द है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ ये मेरा भाई था तो इसलिए दर्द है। दर्द है क्योंकि हम इकट्ठे बढ़े, ऑलमोस्ट इकट्ठे बढ़े। वो मुझे हर एक चीज के लिए पूछना था। उसको एक बार आया था हैदराबाद में नौकरी के लिए आया था एचसीएल से, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं जाना नहीं चाहता, मैंने कहा था जाओ देखो, ट्राई करो। कह रहे लेकिन मैं परिवार को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आई विल ट्राई हियर आल्सो, देखते हैं क्या होता है। फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजा इन्होंने, तो फिर तो ठीक ही रहा। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो आपके परिवार के साथ जो क्षति पहुँची और आप भी कहीं न कहीं टारगेट रहे और आपका परिवार भी लिस्ट में रहा, इसके पीछे आपका जो एक स्वभाव था, अपना जो एक आप संगठन से जुड़े थे, आरएसएस के साथ जुड़े रहे, आप अभी भी जुड़े हुए हैं और आप दूसरे संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शहीद बीके गंजू का जो एक राष्ट्रीयता थी वो सामने आती थी, वो समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे थे और कहीं न कहीं ये सारे मुख्य कारण रहे होंगे आपके परिवार में जो ये संकट आया? नहीं, ये आरएसएस की वजह से नहीं। आरएसएस ये इन्होंने बनाया इश्यू, आरएसएस की वजह से नहीं हुआ।
लेकिन क्योंकि एक मैं आपको एक हाल ही में जो घटना घटी कश्मीर में 2-3 साल पहले, हाँ हाँ कोविड के दूसरे काल में, जब ये बिंद्रू जी का हाँ, वहां पर वो शहीद वही हुए, मैं बताना तो चाहता था। कहा ये गया था कि वो भी आरएसएस से जुड़े थे और कहीं ना ये कहीं तो वो इनको गतिविधियों ये में तो शामिल देखो, है। इनको टूल बनाना है ना आरएसएस। एक्चुअली आरएसएस से नहीं है। आरएसएस इतना था, कितने लोग थे वहां पर आरएसएस के? मानो हम 200 थे, मानो हम 200 थे, 300 थे, लेकिन 5.5 लाख 6 लाख लोग आरएसएस से जुड़े नहीं थे ना। ये बहाना था। अब आरएसएस वाले, अगर इनको चूज करना था, आरएसएस वाले 4 5 10 20, तो वही सिर्फ आरएसएस वाले लेते। लेकिन उन्होंने अनमास्क क्यों किया? गांव, सारे गांव से, कहां से, अब मैं कितने का नाम ले लो, ये साउथ से ले लो, अनंतनाग से ले लो, मटन से, वहां से। अभी आपने कहा संग्रामपुरम में क्या हुआ, हाँ उधर हाँ, बच्चों छत्तीस ने सिंह क्या पुरा में किया? और बच्चे भी, लेडीज भी आरएसएस के साथ जुड़े थे क्या? दे वांटेड टू क्रिएट, मतलब वो पैनिक, और एक को मारा, सारा परिवार चला जाता था। इसी तरह से अब छोड़ा भी किसको? किसी को नहीं। 3,000 लोग अगर मरे, इसके लिए किसी ने आवाज भी, उन्होंने कभी रोया कि कश्मीरी पंडितों को, 6 लाख लोगों को क्या हुआ? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कह रहा हूं, कभी रोया? आज तक कभी कोई सॉल्यूशन आया 6 लाख लोगों का? अभी बेचारे कितने, देखो जम्मू में कितने बेचारे अभी भी टेंटू में होंगे। और ऐसे जो इन्होंने बनाए, कुछ कंस्ट्रक्शन की, दे दिए कमरे, एक कमरे में फैमिली है 6-6 7-7 लोगों की। अब वो क्या तो करे? गंजू जी, आखिरी में आप क्या अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से और राज्य सरकारों से भी अपने न्याय को लेकर? सर, अपेक्षा तो बहुत है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनसे तो अपेक्षा बहुत है, लेकिन या तो मुझे लगता है उनमें सामर्थ्य नहीं है, या तो मुझे लगता है कि वो कुछ और करना चाहते हैं। नहीं तो उनसे अपेक्षा थी, कश्मीरी पंडितों को खासकर, कि हमारा कुछ निवारण होगा, कुछ मतलब रास्ता निकलेगा, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, जिससे इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, जिससे इसको कुछ मतलब अच्छा हो, भला हो, इनके बच्चों का, इनके फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए भला हो। अगर वो हमारे लिए ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर तो, जैसे अभी कितने साल रह सकता हूँ मैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, फिर उसके बाद तो खत्म हो गए ना। हमें तो पता है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता है। 7-8 साल के बच्चे को क्या पता? गंजू जी, जो उस समय आश्वासन दिया गया था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। एक स्टेट ऑनर की बात हुई थी श्री बीके गंजू जी को देने की, वो अभी तक वो पूरा नहीं किया गया। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो निकल के आ रही हैं आपके अंतरात्मा से, कि ये बहुत पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि इसका समाधान हो, और आप इसे अपनी आंखों के सामने ये देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, या फिर इसमें कोई एक ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो आने वाले दिनों में आपको संतुष्टि प्रदान कर सके? देखो, मैं पहले सवाल का, पहले जो 2 सवाल आपने कहे वो तो सही है। एक तो है कि जो उन्होंने कहा था इसका राष्ट्र सम्मान मिलेगा, वो उसके लिए मैं आपको भी अपील करता हूं। अब दूसरी बात, पहला ये मैं चाहता हूं कि जो इसका सिर्फ कमिटमेंट है, जो उसकी वो कमिटमेंट थी, वो पूरी हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो थी, वो आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कम से कम वो तो कम से कम दे दो जो इसको ड्यू है। अगर यही कोई, मैं दोबारा वही कहूंगा, अगर कोई वहां पर पुलिस अफसर होता या आर्मी अफसर होता, तो उसको उन्होंने सम्मान नहीं दिया होता कि नहीं? उन्होंने सम्मान दिया होता, लेकिन क्योंकि ही वाज अ सिविलियन, इतना करने के बाद भी इसको अभी मतलब डस्टबिन में पड़ा है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, दे हैव टू, the central government, present central government, they have to come out directly
कि जिस तरह से वो दूसरों के लिए करते हैं, दे हैव टू कम आउट डायरेक्टली कि हम इनके लिए ये प्रोविजन रखते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। और तीसरी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ आपको कि जो ये सारे लोग जितने भी उन्होंने मारे, इन सब के लिए एक स्ट्रीमलाइन में आना चाहे, सारा कोई ऐसा कमीशन बनना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो दे मस्ट टेक दिस वेरी सीरियसली। बहुत बहुत धन्यवाद गंजू जी आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय मार्तंड टीवी को दिया। आपने अपनी व्यथा जो है जीवन की, जो उस त्रासदी से जो कश्मीरी पंडित समाज गुजरा है, आपने यहाँ पर रखा और आपने पूरी बाकी से अपने विचार रखे और आपने उस यात्रा का जो एक खंडित यात्रा थी हमारे जीवन की, उसका आपने वर्णन किया। आपने ये बताया कि आखिरकार बीके गंजू जो इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व था, अपने आप में थे और बड़े ही एक नेतृत्ववान थे, लेकिन समाज के प्रति जो उनका रुझान था उसके प्रति वो आखिर तक डटे रहे और वही कारण हुआ कि उन्हें अपना समर्पण देना पड़ा और वो शहीद के नाम से जाने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे श्रोतागण हैं वो इस बात को सुने और शहीद बीके गंजू जी को आप याद करें और न्याय प्रक्रिया में अब आप हमारा साथ दें। गंजू जी, आपने अपना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए विचार को लेकर, तब तक बने रहिए मार्तंड टीवी के साथ। देश या खंड देखते रहिए मार्तंड। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका और मार्तंड टीवी का। अफसोस दुनिया संसार